I know कि questions बहुत सारे हो रहे हैं. We'll come back to questions in a little bit. और मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट के बजाय 20 मिनट आपको दे सकें उस वक्त. We have to move on to the panel discussion a little bit, but we'll come back. अच्छा, let me welcome Dr. Amjad Ravid. I think the video already छोटी सी वीडियो दिख रही है, but hopefully somebody can zoom in or double click it. So let me introduce Dr. Amjad Ravid. He is a very unique personality, and part of the reason we wanted to do this panel was bring voices from both academia and private sector, and somebody who's been associated and championing public interest for a long time. So Dr. Amjad Ravid is the CEO of NPV Funds, which is one of the largest and highly rated mutual fund asset management company in Pakistan. He has decades of experience in this industry across many regions, including GCC. He has a PhD in business administration from Southern Illinois University. He has been a champion, as I said, of public interest. So he was one of the founding board members of PILAP. And, we were talking about, it was a good segue, we were talking about, this public financing but private delivery. And so I'll ask Amjad Saab to talk a little bit about that. And some of their work has been around that. And you're right, I think social contract ही break हो गया है, मतलब state ये provide ही नहीं कर सकता, ऐसी एक sort of feeling हो गई. But Amjad Saab, welcome. Great to have you. Thank you, Maruf. Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum Faisal and Maruf. Congratulations, you became our grandfather yesterday. Walking by. And we would have, next time we would love to have you in person as well. Inshallah. So, थोड़ा सा हम late start किए हैं, so we'll end around 4:45. But let me start with sort of your involvement with PILAP and being part of this sort of public interest movement. और अभी audience से भी सवाल आया था कि ये change जो है ये ऊपर से होगा या नीचे से होगा. Political movement, political parties should be championing public interest, but then we have a bifurcated system. So public demand कैसे generate होगी, क्योंकि इतने सारे public private schools हैं. So why was PILAP focusing on education first of all, and how do the research, PILAP के 3 tools हैं, research, advocacy, and litigation. So how do these tools can be used for driving reform? Okay, so Maruf, when I was in the US, I was following ACLU, American Civil Liberty Union, and this was an organization which would take public interest cases to courts, and it will also do advocacy for them. And ACLU had like 5 million members. These are now average Americans. And they had 200 full-time lawyers. They had 2,000 volunteer lawyers, and they would take 6,000 public interest cases to court every year. And again, you can imagine with 5 million members, even if they donate $100 each, that's a budget of $500 million. That's why they were able to afford, 200 lawyers. But also it took them time as well, because, PILAP is now, ACLU is now almost 100 years old. So they came to this level. So in Pakistan, I didn't see, any sort of substitute of that. So that's where we sort of thought that we should have something. So we made Public Interest Law Association of Pakistan banaya, along the lines of ACLU, that it would do advocacy and it will take public interest cases to court. So again, your question was why education? Because I believe, in fact, not only I believe, but, there was a study done by Boston Consulting Group in 2012. They looked at dozens of studies, and their conclusion was that in developing countries,
investment in education is the single most important determinant of economic growth rate. अगर आपको इकोनॉमी ग्रो करनी है तो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन है. And again, there are other studies. For example, there was a World Bank study which looked at 151 countries, and they concluded that for every $1 investment in education, the GDP of the country grows by $20. And also they ascertained, they basically, the evidence showed them that 1% increase in investment, 1% of GDP increase in investment in education results in almost a 1% increase in the GDP growth rate with a lag of 10 years, with a lag of 1 decade. फिर एक स्टडी हुई थी पाकिस्तान पे स्पेसिफिकली, where the result was that 1 year increase in secondary education will increase Pakistan's GDP by 13%. तो हमारा पाकिस्तान में एवरेज जो schooling है, if you take the average schooling for all the citizens, that's about, I think, 5 years or 6 years. अगर हम उसको 7 years पर ले जाएं तो हमारी जीडीपी 13% से बढ़ जाती है. 13% का मतलब है $50 billion. एंड अगेन इफ यू लुक एट वन इंडिकेटर, अगेन आई थिंक इट्स द वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर, कि जो एक्सपेक्टेंसी है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, वो पाकिस्तान में 8 years है. ठीक है, सो अ चाइल्ड हु इज बोर्न टुडे, उसकी जो एक्सपेक्टेड स्कूलिंग है वो 8 years है. सेम नंबर इन बांग्लादेश इज 12 years एंड इन इंडिया इज 13 years. तो अगर 8 साल से हम इसको 9 साल पे ले जाते हैं तो इसका मतलब है $50 billion पर ईयर हमारी जीडीपी ग्रो कर सकती है. और ये जो हमारी रैंकिंग है, व्हेन वी से कि हमारी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 8 years है, वी आर रैंक 145 आउट ऑफ 149 कंट्रीज जिनकी जीडीपी $10 billion से ज्यादा है और जिनकी पॉपुलेशन 10 million से ज्यादा है. और जो 4 मुल्क हमारे से नीचे हैं, उनके अगर आप नाम देखें तो दे आर सोमालिया, सीरिया, माली एंड नाइजर. ठीक है, 149 कंट्रीज में वी आर 145, और ये 4 मुल्क हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग हमारे से नीचे है. So we have a huge sort of backlog in education, and again my belief was कि जब तक हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, I think you guys have already covered कि हमारे कितने million, tens of millions of children are out of school, tens of millions of children in government schools are getting a very low level of education. तो जब तक हम ये चीजें बेहतर नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी. एंड दैट्स व्हाई we filed our case in the Sindh High Court. अब इस बात को भी 7-8 साल हो गए, और हम इसमें यही था कि आर्टिकल 25A basically says कि all children 5 to 15 year old should be entitled to free and compulsory education. तो वो वहाँ हमें उतनी सक्सेस तो नहीं हुई, बिकॉज अगेन आई थिंक एक तो जो जजेस का इंटरेस्ट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट केस, उतना नहीं हुआ. डेट समय दी गई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर जजेस चेंज होते रहे, कोई प्रमोट हो गया सुप्रीम कोर्ट में, कोई बेंच चेंज हो गया. फिर 3 दफा ये हुआ कि जजेस ने एक कमेटी बना दी जिसमें सेक्रेटरी एजुकेशन था सिंध गवर्नमेंट का एंड माई सेल्फ, कि आप बैठ के एक प्लान बना के दें. बट एवरी ईयर ऑलमोस्ट सेक्रेटरी एजुकेशन चेंज हो जाता था. तो अभी तक हमें यही सक्सेस हुई है कि जो जजमेंट है कि जो सब स्कूल टीचर्स हैं, दे शुड बी रिक्वायर्ड कि उनका थंब इम्प्रेशन लिया जाए, वो आते हैं पढ़ाने के लिए, which again is very important because we know कि there are thousands of teachers जो स्कूल ही नहीं आते पढ़ाने के लिए. तो again it's a good development, but I think it's very basic. We wanted कि funding बढ़े, we wanted कि especially secondary school बहुत कम है पाकिस्तान में, इसीलिए एक बहुत बड़ा ड्रॉप है from like 70% enrollment to 40% enrollment when children go from primary school to secondary school. तो secondary schools की ज़्यादा ज़रूरत है. सो बट तो ये जो सब चीज़ें हमने रिक्वेस्ट की थी, बट अभी तक हमारा 6-7 साल में उतनी प्रोग्रेस नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट वी आर ऑन इट एंड वी प्लान टू फाइल सिमिलर केसेस इन अदर प्रोविंसेस एज वेल. I think that brings up an interesting point.
जिस साल में बात की कि ये प्रोसेस कि सिर्फ हमें प्राइमरी स्कूल की जरूरत नहीं है बल्कि सेकेंडरी हाई स्कूल तक एक पूरा प्रोसेस तो one thing in your book which was very striking was कि हमारे कोई 1.5 लाख पब्लिक प्राइमरी स्कूल है लेकिन only 31,000 और लगभग हाई स्कूल and of that there's roughly 6,800 high schools that are for girls. Right, so there's a gender element to it, but also the fact कि हम तो कर ही नहीं रहे पाइपलाइन को पूरा कर ही नहीं रहे तो वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और बाकी जो हम बातें कर रहे हैं वो कैसे होंगे तो आई थिंक how do we make it salient for policy actors उन्होंने क्यों नहीं इस चीज को इंटरनलाइज किया क्योंकि जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा तो वो रिटर्न्स टू एजुकेशन और जो जैसा आपने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट and so on. But also there are real constraints, right? Mobility constraints. You talk about bringing schools closer to kids or kids closer to schools. So you can help us understand. Again, मैं वो वापस उस पे जाता हूँ मैं फिर कहता हूँ कि ये by design है हमारी जो पॉलिसी थी इससे पहले 18वीं तरमीम से पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट वगैरह मौजूद थे ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों के ये थे 1948 में जो पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई है अगर आप उसकी प्रोसीडिंग्स पढ़ें तो उसमें भी लिखा हुआ है कि वी एक्नॉलेज वो इट वाज अ हूज हू ऑफ पाकिस्तान जो उस कॉन्फ्रेंस पे आया 300 लोग थे कायदे आज़म खुद तशरीफ नहीं ला सके थे उनका मैसेज पढ़ा गया था और फजलुर रहमान शायद एजुकेशन मिनिस्टर थे वो उसे प्रिजाइड कर रहे थे उसमें भी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है अगर उसके आप मिनट्स या कार्रवाई देखें कि एजुकेशन इज एक्नॉलेज्ड एज अ राइट इवन इन 1948 लेकिन साथ ही कैविएट जो हमेशा चलता रहा है कि लेकिन हमारे पास पैसे नहीं तो वो जो कैविएट था उसकी वजह से वो कैविएट एक्सेप्टेबल है जब तक आप उसे बेसिक राइट नहीं बनाते हैं क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ पॉलिसी में वो रखा हुआ था आपने एजुकेशन को अच्छा उसमें लेकिन पॉलिसी क्या बनाई थी कि भाई हर 1.5 किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल होगा और हर 4 प्राइमरी स्कूल्स पे या 5 प्राइमरी स्कूल पे एक मिडिल स्कूल आएगा हाई स्कूल तो बहुत कम थे ये पॉलिसी थी तो यानी बाय डिजाइन आप ये कह रहे हैं कि देखें प्राइमरी तक आपके करीब आ गया काफी बच्चे छोटे होते 1.5 किलोमीटर तक आपने कर दिया लेकिन जो मिडिल स्कूल है वो बाय डिजाइन पे वो दूर हो गया ना क्योंकि एक स्कूल है 4-5 स्कूलों तो अगर दरमियान में है तो गांव से काफी दूर हो जाएगा अच्छा अब ये भी देखिए कि प्राइमरी टू मिडिल लड़कियों में ज्यादा मसला इसलिए भी होता है कि वो ऑलमोस्ट हमारे बच्चे थोड़े लेट आते हैं स्कूल ऑलमोस्ट प्यूबर्टी का टाइम आ रहा है आप स्कूल भी दूर कर रहे हैं नई जगह पे जाना बच्चों का मुश्किल भी हो जाता है तो ड्रॉप आउट बाय डिजाइन था कि 1/4 के करीब बच्चे आ जाएंगे चारों स्कूलों से मिल मिला के उनको हम पढ़ा देंगे वो आगे फिर उनमें से कुछ हाई स्कूल वगैरह कभी भी ये सोचा ही नहीं गया था कि आप सारे बच्चों को जो प्राइमरी में भी आ रहे हैं उनको आप आगे तक हाई स्कूल तक अच्छा एक ही दूसरा बाय डिजाइन ज्यादातर स्कूल कैसे थे जो हिस्टोरिकली बने थे 2 कमरों के स्कूल थे 2 कमरे बनाए थे साथ आगे बरामदा था जहाँ पे आपको पता था कि 5 या 6 क्लासें होनी है प्राइमरी और वहाँ पे मल्टीग्रेड टीचिंग आपने शुरू करवाई थी वो मजबूरी थी या जो भी वजह थी रिसोर्सेज की कमी हमेशा कहा गया सो ये बाय डिजाइन चीजें हुई थी जो कभी चेंज है क्योंकि बाय द टाइम ये आर्टिकल 25 आता है 2010 में गवर्नमेंट्स नए स्कूल बनाने को बहुत देर से बंद कर चुकी हुई है पंजाब गवर्नमेंट ने तो बड़े ऐसे ऐसे स्कूल दिए हैं तो 56,000 थे वो रैशनलाइज होकर अब 50,000 के करीब रह गए कुछ प्राइमरीज को अपग्रेड जरूर कर रहे हैं वो मिडिल और हाई स्कूल में लेकिन नए स्कूल नहीं बना रहे वो जहाँ पे स्कूल होना चाहिए अब आफ्टर 25 ईयर तो ये होना चाहिए कि हर स्कूल कम से कम मैट्रिक तक जाए ना आपने 16 साल तक जाए पर वो नहीं है हमारे पास दूसरा बात इसमें यह है कि जो हाई स्कूल की तालीम है वो महंगी है वो आपको लैब भी चाहिए आपको लाइब्रेरी भी चाहिए आपको स्पेशलाइज्ड टीचर भी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके प्राइमरी तक तो हर टीचर हर चीज पढ़ा लेते हैं तो वो कॉस्ट भी बढ़ जाती है और एक जो पॉलिसी आपने कही कि हमारा बाय पॉलिसी है कि 6वीं के बाद या मैक्सिमम 7वीं के बाद जेंडर
सेग्रीगेशन भी हम कर रहे हैं इन पब्लिक स्कूल। इसकी वजह से और मसला हो जाता है कि फिर आपको डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जो पिरामिड है हमारा वो प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी दोनों में ही बहुत नैरो है। गोइंग फ्रॉम प्राइमरी अप, प्राइमरी की एनरोलमेंट हम काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं अब, अगर उसमें इंसेंटिव वगैरह और कुछ और चीजें आ गई। मिडिल और हाई स्कूल में हमारे पास ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में अभी इतने स्कूल। इसलिए मैं कुछ अर्से से तो मैं ये कह रहा था गवर्नमेंट को दे रही है ना स्कूल 13,000, मैं कह रहा था कि अगर वो सोचते, ये सवाल भी आपने किया था कि भाई व्हाट्स द गेम प्लान, अगर प्लान गवर्नमेंट ये बनाना चाह रही है कि भाई देखें प्राइमरी तो प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा दे देता है, हम पैसे दे देंगे ताकि पॉइंट ऑफ डिलीवरी पे वो फ्री रहे, लेकिन बच्चे ये प्राइवेट सेक्टर सारा संभाल ले, प्राइमरी हम अपना सारा फोकस मिडिल और हाई स्कूल पे करते हैं क्योंकि वो महंगे भी हैं, वो मुश्किल भी है करने, वहां गवर्नमेंट अपना एम्फेसिस कर दे, प्राइमरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसी पॉलिसी बिल्कुल वायबल बन सकती है थियोरेटिकली, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए और जरा हिम्मत भी चाहिए और कमिटमेंट बड़ा चाहिए करने के लिए। बट दैट माइट बी in some ways a much better policy where you say कि we will pay for education for every child, अगर वो देना चाहता है वो प्राइवेट सेक्टर दे दे 5वीं तक, आगे हम क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा उसकी कैपेसिटी भी नहीं है इतने स्कूल बनाने की, मिडिल और हाई स्कूल, और वो महंगे भी हैं, तो वहां पे हम मेजर तरीके से आ जाते हैं। तो दैट काइंड कैन बी वन ऑफ द पॉलिसीज दैट वी थिंक अबाउट, लेकिन अभी ऐसी कोई सोच नहीं है कि बाय डिफॉल्ट ये हो गया है कि वो 13,000 प्राइवेट स्कूल में देती हैं, लेकिन अभी कोई इसमें थॉट आउट प्रोसेस नहीं है। We'll switch a little bit to एक बात हमारी Q&A में भी आई थी और ये बात भी थी कि I'll go back to this point about public financing, चाहे वो वाउचर्स की सूरत में हो या सब्सिडीज की सूरत में हो या जो भी, लेकिन प्राइवेट डिलीवरी। I know Jidu साहब, you have looked at various different models, का मॉडल है, सेकेंडरी एजुकेशन फाउंडेशन के मॉडल्स हैं, तो can that really work कि public financing हो, again vouchers या subsidy की सूरत में, और private delivery? How can we use that as a mechanism for sort of innovating, experimenting, learning, and delivering higher quality education? Dr. Maruf, are you asking me or Dr. Faisal? I was asking you. Okay, so basically पाकिस्तान में ये पंजाब से शुरू हुआ था, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, आई थिंक मे बी 20-30 years ago, जब इन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था कि इन्होंने गरीब जो पेरेंट्स हैं उनको वाउचर देना शुरू किया था। उस टाइम मेरे ख्याल 1,000 रुपये था, वेयर दे कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स। और इसमें इनको काफ़ी सक्सेस हुई थी, बिकॉज एक तो इसने कंपटीशन क्रिएट कर दिया लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में टू अट्रैक्ट दैट मनी एंड टू अट्रैक्ट दोज चिल्ड्रन। और स्टडीज़ ने शो किया कि जो बच्चे इन लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वाज मच बेटर देन गवर्नमेंट स्कूल्स। और इसमें अभी भी तकरीबन शायद 2 से 3 मिलियन बच्चे पढ़ रहे हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में, और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में 500,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। दिस मॉडल इज मच मोर सुपीरियर बिकॉज इसमें मार्केट फोर्सेस का रोल आ जाता है, बिकॉज लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स कम्पीट करते हैं। फिर शायद कारदार वाज हेडिंग दैट, और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि वहाँ पे एवरी फ्यू मंथ्स जाके बच्चों को टेस्ट करें, और जो स्कूल जहाँ पे बच्चों का पासिंग रेट कम था उन टेस्ट पे उनको फिर अलाउ नहीं था कि वो इस फंडिंग को अवेल कर सकें। और वर्ल्ड बैंक ने इस सिस्टम को, पाकिस्तान के सिस्टम को, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट सिस्टम पूरी दुनिया में करार दिया। मगर इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है उसने उसको बिल्ड नहीं किया। अगर उसको बिल्ड करते तो आज 2 मिलियन नहीं, शायद 15 मिलियन 10 मिलियन बच्चे पढ़े होते पंजाब में, और सिंध में भी सेवरल मिलियन पढ़े होते। सर्टली गवर्नमेंट का सिस्टम तो फेल हो गया क्योंकि वहाँ अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती, पॉलिटिकल हायरिंग भी होती है, फिर आप टीचर्स को फायर नहीं कर सकते। एक इंटरेस्टिंग, मेरी जब एक जज ने मेरी और सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध की एक कमेटी बना दी फिलाप की और उनकी, तो उन्होंने मुझे प्राइवेटली बताया कि 40,000 टीचर्स की ट्रेनिंग हुई
और मैंने से पूछा कि जी उसमें से कितने फेल हुए, तो उन्होंने कहा एक भी फेल नहीं हुआ। मगर उन्होंने उन्हीं सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि जो 2 लाख टीचर्स हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर उनको 10वीं जमात पे टेस्ट किया जाए तो शायद उसमें से 80% फेल हो जाए। तो ये लेवल है टीचर्स का, वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, फायर नहीं कर सकते। एक चीज़ थी, सैट का एग्जाम लेता था ये IBS अक्खर बच्चों का, और उसका रिजल्ट ये थे कि सिर्फ 30% बच्चे सिंध में पास कर रहे थे जब 5th ग्रेड या 8th ग्रेड पे सैट का टेस्ट। तो वो शर्मिंदगी की वजह से वो टेस्ट लेना ही सिंध गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। बजाय ये कि उस टेस्ट के बेसिस पे प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को अकाउंटेबल करते, उन्होंने वो टेस्ट बंद ही कर दिया। सो वहाँ तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट है, इट इज़ अ गुड मॉडल। अगेन फिर गवर्नमेंट के पास पैसे भी नहीं है कि हज़ारों स्कूल बिल्ड करें। इस केस में तो पैसों का भी इस्तेमाल कम है, बिकॉज अगर आप 1500-2000 रुपये का वाउचर दे रहे हैं पर चाइल्ड, तो आप 5-10 मिलियन बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो वो कॉस्ट बहुत बड़ी नहीं बनेगी, वर्सेस कि अगर आप बाकायदा स्कूल बिल्ड करें और उसमें टीचर्स हायर करें एंड ऑल दैट। और जो कॉस्ट है इंटरेस्टिंगली सिंध में पर चाइल्ड पढ़ाने की, वो तकरीबन 4500 रुपये पर चाइल्ड है। जबकि अगर आप प्राइवेट देखें, लोकल प्राइवेट स्कूल, तो वो वही 2000 में उससे बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट मॉडल। जहाँ तक फंडिंग की बात है, देखिए इंडिया ने आज से मतलब 2012 में ये किया था कि 3% एजुकेशन सेस लगा दी थी। ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, चाहे आपको इनकम टैक्स हो या कस्टम से हो या एक्साइज से हो या सेल हो, वहाँ पे 3% की सेस लगी थी, जिससे इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रिलियंस ऑफ रुपीज इकट्ठा किया और उससे स्कूल्स खोले और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की। तो अगर हम सीरियस हों एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट के, तो आई थिंक देयर आर थिंग्स वी कैन डू। वी शुड हैव इम्पोज सच अ सेस एंड वी शुड यूज दैट मनी टू, ये या तो वाउचर्स दें बच्चों को, या फिर फर्दर गवर्नमेंट स्कूल खोलें, सेकेंडरी स्कूल्स खोलें, जिस तरह डॉक्टर फैसल ने बोला। I mean, they think, it's an interesting model. I mean, वो tax to GDP ratio तो बड़ा challenging है पाकिस्तान में, तो ऐसे tax provision डालना, but I think the cost differential has been an interesting point to make. तो असल I think थोड़ा सा हम वापस जाते हैं private schools पे भी, and larger point के लिए evidence तो बहुत है. You have a lot of work over decades on education. आसन का काम है, तारक का है, ग्लोबली देखा जाए तो लैंड का है, जिष्णु का है. So there's a lot of evidence that has been generated in Pakistan, right? We're not even saying that they may all sit here, but uptake of evidence is very low, and you have a bunch of education consultants. I mean, the system is flush with that. So what are the constraints in terms of getting a better evidence uptake? और अगर इसी को मद्देनजर रखते हुए, if you can answer the, I mean, yes, we are sort of saying that we privatize away education and so on, but at the same time, finally on way, but क्या कहते हैं, privatize away education. But I mean, to be fair, they were responding to a market failure as well, right? And on the other hand, we're saying education for all of them. How do we reconcile all these issues in the system and yet get better uptake of evidence? I mean, ये जो है ना कि पहली दफा perfect policy idea, पहली perfect design आएगा, इससे हटके एक culture of experimentation and learning कैसे है? अच्छा, एक तो बड़ा सवाल आपने कहा कि एक तरफ हम गारंटी दे रहे हैं 25A की कि हर बच्चे को मुफ्त और कंपल्सरी तालीम देंगे, और दूसरी तरफ आधे बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं. तो ये प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन, इसमें इक्विलिब्रियम क्या है? ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जितने भी स्टडीज हैं वो शो के प्राइवेट सेक्टर के रिजल्ट्स थोड़े बेहतर हैं पब्लिक से. वो गैप इतना नहीं है, स्पेशली द लो की प्राइवेट सेक्टर तो इतना गैप नहीं है. एलीट स्कूल्स, जिसकी हम अमूमन जब प्राइवेट सेक्टर कहते हैं तो एलीट स्कूल्स की बात करते हैं. एलीट जो है वो 2-3% से ज्यादा नहीं है पूरे पाकिस्तान में. ये जितने बड़े स्कूल जिनका आप सुनते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों, कोई इतने ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3% हैं भी हमारे बच्चों की
एनरोलमेंट के लिहाज से. सो लेकिन उनकी ऑब्वियसली उनकी वॉइस इज मच स्ट्रॉन्गर. Beacon House, LGS, AGS, others of Pakistan. For 95-97% of children that are enrolled, the quality of education is fairly poor. Now, how do you see an equilibrium where Jahan private sector has stepped into what you call a market failure? It has also exacerbated inequalities in the country. And I think we have fairly good evidence on things like this, where you have been in education has a huge impact on where you will end up. आप मुख्तलिफ स्टडीज तो देख सकते हैं जिसमें जो तालीम आपकी है, जैसी तालीम है वैसे आपको पहली नौकरी कौन सी मिलती है, आप किस स्कूल में किस कॉलेज में जाएंगे, किस यूनिवर्सिटी से, आपका एक्सेंट कैसा है, आपका बाकी पहली तनख्वाह कितनी मिलती है, वो सारी चीज़ें बहुत डिपेंडेंट है कि आप किस एजुकेशन लेवल किस सिस्टम से आ रहे हैं. And that it has a hysteresis effect, as I said, where you have been has an impact. And intergenerationally, अगर savings नहीं है गरीब की, तो गरीब का बच्चा, जाहिर है गरीब की सेविंग नहीं तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा भी नहीं, वो भी गरीब रहेगा. जबकि जो वेल ऑफ है, अगर वो एजुकेशन इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, तो डिफरेंस इंटरजेनरेशनली भी है, वो ना सिर्फ बढ़ता है, वो इंट्रेंच भी हो जाता है. एंड वी हैव सीन इनइक्वालिटी इंक्रीज इन पाकिस्तान. And I'm not saying it's only because of education, but education has not helped in leveling the playing field either. Whereas we would want education to actually, whatever is your notion of democratic citizenship or meritocracy or whatever, it has an element that people should be given the opportunity that they have the potential for. Clearly, we are not living up to that by saying that your opportunities in this society depend on your parents' income. वो एक पुराना लतीफ़ा भी है ना कि अगर आपके वालिद जर्नैल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें आपका कसूर तो नहीं ना, आपसे पूछ के थोड़ी पैदा किया जाता है कि किस घर में जाना. पर अगर आपके फादर इन लॉ जर्नैल नहीं तो आपका कसूर है, क्योंकि उसमें तो आपका डिसीजन है. तो यहाँ वो मसला है ना कि हम पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंडेंट हैं टोटली, क्या आप तालीम कैसी हासिल करते. दैट any society that gives basic rights and basic जो भी constitutions हैं, सब में हम वादा उल्टा करते हैं ना कि the government and the state will equalize opportunities and will take away this advantage one way or the other that comes from birth. उसमें हम बिल्कुल पूरे नहीं उतर रहे, क्योंकि वो obviously private sector exacerbates that to a certain extent and it can't be other. क्योंकि वाउचर देंगे भी तो वो भी आप मिडिल स्कूल या जो भी तक ही दे सकेंगे ना. आप कोई बीकन हाउस के वाउचर तो नहीं देने लगे, आप कोई इस तरह तो नहीं कर सकेंगे. तो वो एलिमेंट तो रहेगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, there is no doubt that private sector has made tremendous contributions in opening up access to education which government had given up on. वो कभी भी इतने स्कूल ना बना सकती. इस वक्त लाहौर शहर में फॉर एग्जांपल probably 90% of children if not more go to private schools. ये सारे बड़े शहरों में है. लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हमारे गवर्नमेंट के कितने 1200 स्कूल है राफली, और प्राइवेट कितने होंगे 10-15 हज़ार स्कूल प्राइवेट होगा. हर जगह आपको प्राइवेट स्कूल. सो बड़े शहरों की तो गेम ही चेंज कर दी है प्राइवेट सेक्टर ने. जहां जहां आपको कंग्लोमरेशन मिलेगी, मार्केट चाहिए ना आपको बच्चों की, इसीलिए आपको इंटीरियर सिंध में प्राइवेट स्कूल नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ कोर्ट का स्ट्रक्चर है. वो इतने बच्चे होते नहीं जो आपको कोर्ट दे सके ऑफ अ वायबल स्कूल. तो वहाँ आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं मिलेगा, आपको रूरल बलोचिस्तान में नहीं मिलेगा. लेकिन पंजाब का तो एक एक गाँव, एंड दिस इज शोन वेरी क्लियरली इन द स्टडीज ऑल्सो जो सर भी करवा रहे हैं, कि पंजाब का तो एक एक गांव अब इतना बड़ा है कि वहां 6-6 स्कूल बन गए हैं प्राइवेट सेक्टर. सो लेकिन what is unclear to me is that the government in planning for 25A etc has not done any thinking on how do you bring these two together, what are the mechanisms you want to use to equalize to the extent possible the opportunities and chances etc. वो कोई चीज मुझे नजर नहीं आती जो आप पूछ रहे थे कि भाई ये इक्विलिब्रियम में इकट्ठे कैसे होंगे.
एक ये चीज मैं कहता हूँ, लेकिन दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अभी मेरे ख्याल में आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस बहुत अरसे से, which is why a lot more of my work has been on public sector rather than private sector. I very strongly feel that it's the public sector that provides the benchmark or the lowest standard, in some ways acceptable standard, that we have in education society. अगर आपने एजुकेशन को चेंज करना है तो बेशक प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें, आप पब्लिक सेक्टर की क्वालिटी बेहतर कर दें. Either private sector will respond because of competition and improve its quality in line, or people will just move to the public sector. लेकिन अगर एजिसंस सबके लिए अवेलेबल हो तो शायद आप बीकन हाउस भी ना भेजें बच्चे को, ठीक है ना. अगर फ्री एजिसन मिल रहा हो, घोड़े दौड़ा सकते हैं आप, तो फिर बीकन हाउस भेजने की क्या जरूरत है आपको, राइट. तो वो जो ऑप्शन, वी हैव टू, irrespective of anything else, we have to raise the standard of the public sector education system. हमारे स्कूल जो पब्लिक स्कूल है उनका स्टैंडर्ड उठाना ही पड़ेगा. आपको प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं. ये आजकल लोग बहुत बात करते हैं ना कि रेगुलेटेड ना करें, खत्म हो जाएगा, खराब कर देंगे आप. उससे बेहतर है आप अपने स्कूल बेहतर कर दें. पेरेंट्स खुद ही चूज कर देंगे. वो प्राइवेट को खुद बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि वहां पैसे लेने हैं उन्होंने. वो पैसे लेंगे तो वो बच्चे को फौरन टाई भी पहनाएंगे, वो उसको बाकी चीजें भी कराएंगे, पेशेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे वो, compared to the, and we have seen this repeatedly with the schools जिनकी बात अभी कर रहे थे, चाहे वो पेफ के हों या चाहे जो अभी आप ये दे रहे हैं स्कूल, उसमें वो थोड़ा सा रंग रोगन करते हैं, ये वो करते हैं ना, तो बच्चे और स्कूलों से उठ के उधर वापस उस पब्लिक स्कूल में आ जाते हैं, क्योंकि वहां तालीम थोड़ी मिलनी शुरू हो गई. तो क्या जरूरत है 300 रुपया 400 रुपया कहीं और देने की, राइट. So the solution, key point is, how do you raise the quality of your public sector schools? That will change the equilibrium very nicely. फिर फर्क. So if your public school is at a minimum standard that is acceptable to society as a whole, whatever that standard is, उसके बाद अगर किसी ने घुड़सवारी सिखानी है तो भेज दे संज्ञा बीकन हाउस, ठीक है. लेकिन वो मिनिमम स्टैंडर्ड तो दे देना. वो मिनिमम स्टैंडर्ड ही नहीं हमारे पास, जिसकी वजह से ये सारा एक किस्म का डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट you know, maybe by design, तो जो है ना, वो जब चीफ जस्टिस हमारे नए आ रहे थे तो all the candidates were from HSM. I felt like saying that the sun never sets on HSM. So now we know कि मसला कहाँ. So Abdul Saab, I think I'll ask my last question and then I want to open up to the audience for more mauka de to ask questions from both of you. So quick question around, you know, Faisal brought up an interesting point, right? क्योंकि अब हमारा सारा पाकिस्तान में एक तरह का solution तो हो नहीं सकता. There's a regional heterogeneity here. कि जो सिंध में होगा वो, you know, जो पंजाब के dynamics are very different from Balochistan. So I think you talked about this private delivery but public financing. उनमें voucher न सिर्फ आपको education subsidize करने के लिए चाहिए होंगे, but अगर हम सिंध की बात करते हैं तो हर वोट में वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव ही नहीं है, उनकी मार्केट ही नहीं है कि वो बनाए. तो you know, you would have to have vouchers for transport or something like that. So you know, largely, how do we think about this as an entire system? Or you know, thinking about how do we take platforms like Bilab, all this evidence research that to create this public demand for quality provision of education, right? Ultimately, that's what we want. And it's a baat hai ki instead of race to the bottom, we want to lift the system. Gee, thank you, Maruf. I think basically the policy makers hain, you see, agar if they are convinced, you know, of the value of education, तो बहुत सी चीजें खुद ब खुद, you know, accountability in government schools, you know, ये जो voucher वाला system है, ये सब चीजें हो जाएंगी provided के policy makers understand the value of education. और इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह हमारी इकोनॉमी, you know, हमारी per capita income is growing much lower than, you know, other developing countries. और इसी तरह हमारी export to GDP ratio is under 10%, you know, which is one of the lowest, you know,
in the world. तो अब इसमें अगर आप ये देखें कि अगर हम इंडिया की एग्जांपल देते हैं तो वहाँ पे आईटी में 5.6 मिलियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे पढ़े लिखे ही हैं किसी लेवल पे उनको, क्योंकि 70% इंडिया में भी गवर्नमेंट एजुकेशन है, 30% प्राइवेट है, तो किसी लेवल पे उनकी एजुकेशन हुई है, अच्छी एजुकेशन हुई है कि 5.6 मिलियन लोग काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में और 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, और हमारी टोटल एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर की, ठीक है। तो अगर वो ना पढ़ाते अपने बच्चों को और ये कहते कि पढ़ लिख के क्या करेगा, नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो शायद आज इंडिया भी इस लेवल पे ना होता कि 200 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट कर रहा हो। इस तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हम हमारा अगेन एजुकेशन की स्पेंडिंग कम है और मिलिट्री स्पेंडिंग हमारी हायर रही है देन एजुकेशन स्पेंडिंग, मगर अगर थोड़ा सा हम पॉलिसी मेकर्स को बताएं कि अगर एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे और उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डाउन द रोड आपकी मिलिट्री स्पेंडिंग भी ग्रो करेगी। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो 2000 में पाकिस्तान की मिलिट्री स्पेंडिंग 3 बिलियन डॉलर थी और इंडिया की 14 बिलियन डॉलर थी, तो 5 टाइम्स इंडिया स्पेंड कर रहा था ऑन मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान। आज हमारी स्पेंडिंग 10 बिलियन डॉलर्स है और इंडिया की 86 बिलियन डॉलर्स है, तो ये जो 5 टाइम्स था अब 9 टाइम्स हो गया। अब ये क्यों हो गया? क्या इंडिया ने अपना मिलिट्री बजट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ाया है? नहीं, वो तो वहां पे ही है 2.5 2.6% ऑफ जीडीपी, मगर उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो की है 6% पर ईयर से, और हमारी इकोनॉमी 4% पर ईयर से ग्रो की है। तो इस वजह से उनका जो और हमारा डिफरेंस है वो जो 5 टाइम्स होता था मिलिट्री स्पेंडिंग का, वो अब 9 टाइम्स हो गया। आई थिंक पॉलिसी मेकर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि they need to, if they want to grow the economy so they can grow the military budget, they need to invest in education and population planning and similar things. अगर हम ये बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखेंगे तो हम कभी भी कैचअप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका जो रिवॉर्ड है उसमें आने में 10 साल 15 साल 20 साल लगते हैं, बट कहीं ना कहीं करते हैं मुल्क। अगर आप 40-50 साल पहले चले जाएं तो स्कूल एनरोलमेंट चाइना में 22% थी, सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट, जो आज 95% है। कहीं ना कहीं चाइना ने वो फैसला किया। इस तरह इंडिया की भी स्कूल एनरोलमेंट 20-25% थी, जो आज तकरीबन 80% पे चली गई है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने भी फैसला किया कि तालीम में इन्वेस्टमेंट करना है हमें। कहीं ना कहीं अब 80 ईयर्स हो गए, कहीं ना कहीं ये फैसला करना पड़ेगा और उसका रिवॉर्ड टाइम के साथ आएगा। बट अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो मिलिट्री गैप है, इकोनॉमिक गैप है, वो बढ़ता जाएगा बाकी दुनिया से। तो आई थिंक जब तक पॉलिसी मेकर्स को हम ये अंडरस्टैंड नहीं करवाएंगे, हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट की बात कर सकते हैं, इंप्रूविंग गवर्नमेंट स्कूल की बात कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी बात कर सकते हैं, वो चीज़ें होंगी नहीं। I'll stop here. Great. नहीं, आप सही कह रहे हैं। I think I want to give maximum time to the audience. Again, 3 questions. जब आप क्वेश्चन पूछें तो अपना नाम, एफिलिएशन और किससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी बता सकते। ये फ्रंट में है, सेकंड रो में। My name is Vipra. I am from North School of Economics, Punjab University and Government College University. We know that 45% of the students are in private schools, but the larger chunks are posed in the low fee schools. Having said that, one of the major reasons that the people enroll their kids in the private school is because they say or they claim to be as an English medium instruction school. So what do you think of the medium of instruction plays in devising the policies or privatization of low fee schools, especially the mushrooming and franchise especially? Thank you. इस पे तो फैसल, you have talked a lot about medium of instruction. Second question, we'll take 3 in a row. Gigi. You identified education as the core. May I suggest, both of you, that can we propel that and take it in the direction where it is needed, and that is population. Your base, your core, the core issue in this country, whatever sector it is. And I would then say, yes, let us give priority to the human development sectors. But the fact is that until and unless, and very little is, in fact, nothing is happening at this point. And mind you, in 1998,
the population planners at the cost of their lives, they did in the census. There was a clear drop in the birth rate. It could have gone down to replacement level had we sustained that program. And the most important thing, because we've been hearing so much about the saving and the relationship between economic and political development, I can tell you that if we had followed what the census was telling us and continued, we would have been at a point where the population planning program would be contributing the maximum to your GDP, to your enrollment, to your preventive health ready. That's my first question. The second is systemic. We have talked about parliament. We have talked about the civil bureaucracy. The parliament has the cabinet. But please let us remember that the executive government is headed by the bureaucracy. And yes, there is an interplay when you come to making the policy, but then you come to the local government, which is the third tier. And in the constitution, it is stated as being first tier of democracy. And I will come to that later on, but at this time, that is my third question. My second question is that we have seen, and we know very well, and I guess I have, along with a lot of champions for population, yes, we have been able through army governments, through Ayub Khan, the first and the last champion we had, right? But the fact of the matter is, and this is what I want to ask either of you, we can see very clearly that democracy cannot thrive. It cannot grow. So do we understand that all your plans? I was shocked when I read just the other day, I was giving a talk on children. And Qaid Azam's statement on education, it is exactly what Faisal Bari Sahib was saying today. Exactly the same. So I think the time has come when we need to regurgitate this and put our house in order. And let the parliament be capable of making policies, which they are different. It's a non institution, this whole political institution. And the last point is, we talked a lot about 18th Amendment, and rightly so. And I would just like to tell you that it was Mr. S.M. Zafar and the chairman said Zahir Sajjad. These two were the persons who pushed to put education both, and I remember they came out beaming because we had given it in writing from the party as to what should be done. So it was there. But I do want to tell you that even at that time, in many parliamentary committees, this issue was raised. Why don't you make a wet run of this 18th Amendment and see what's going to happen? And do the same for Musharraf's local government ordinance. It was an excellent ordinance. And if we had followed the local government system, let us decentralize and not to the province. It was never intended to go to the province. It was intended to go to the district. And until it does not go there, ownership, the stakeholders, the people of this country. And I'd like Faisal Bari Sahib's comments on this, because I do feel that these are important areas in which we have to pick up ourselves and just move in that direction. Yeah, one more quick question. Right. Say so. Assalamualaikum everyone, my name is Yusuf. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपके साथ for having this fantastic public discourse on education. यार बोला सर मैं शुक्रिया आपका तो बेइंतहा शुक्रिया, आपका तो ख्याल रखिए, यकीनन बहुत शुक्रिया. This whole event is around you. Certainly, you are the man of the ceremony
और इसी तरह डॉक्टर अमजद साहब था कि उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया। तो मेरा बैकग्राउंड इंटरेस्टिंगली इन्वेस्टमेंट्स, लॉ, टीचिंग, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और इवन लॉ पढ़ाने का मौका मिला रोजिंग सेंटर। तो मेरा सवाल आपसे बेसिकली बस आई वाज वंडरिंग इज, क्योंकि हम ये फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे मजीद थोड़ी सी मालूमात चाहूँगा कि हाउ वी आर एड्रेसिंग द वेरी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन डीपली, बिकॉज मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला ही यही है। डॉक्टर अमजद साहब जानते हैं कि वी हैव SCCP established Institute of Financial Markets Pakistan. वहाँ पे if you want to become a certified stockbroker, there is a grandfathering program that if you have spent certain years in the field, you are considered to have the skill set and the education at a certain level. इसी तरह मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड चूंकि लॉ का भी है, तो and I've looked into ILO as well as UNESCO, और इस वक्त हमें मालूम है कि यूनेस्को भी बहुत सारी इनफॉर्मल एजुकेशन को भी they are trying to regularize and standardize it. तो आपसे ये समझना है कि अभी तक हम क्या वजह है कि जो हम इर्द गिर्द देखते हैं बेशुमार हमारे मोटर मैकेनिक्स और बहुत सारे स्किल सेट्स के लोग मौजूद हैं, and we are somehow unable to create an innovative model of social recognition or public interest recognition, and saying that yes, this is education, but you need to have some sort of उसको हम किसी तरह मेन स्ट्रीम, ये जो एजुकेशन का प्रोसेस है, इसकी जो आउटकम है, उसमें जो एक एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है वो बड़ा क्रिटिकल है। बिकॉज हमने ये देखा कि पिछले कुछ सालों में इवन द मोस्ट अनएम्प्लॉयड आर द PhD डॉक्टर्स, और वो जाके HEC के बाहर धरने दे रहे हैं। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी रियली वांट टू हैव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और इसके अलावा जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट और जो मैंने कंपटीशन कमीशन टेकअप भी किया केस इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वो अगेन गोइंग बैक टू द एजुकेशन। हमें यही समझ नहीं आ रही कि कितने सालों की एजुकेशन, कितनी एजुकेशन। इसकी मैं एग्जांपल ये दूंगा कि लाम्स ने 16 साल का MBA प्रोग्राम और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया। HE से जब आया उसने कहा कि जनाब ये मास्टर्स नहीं है, यू डोंट हैव एन MBA, इट्स नाउ बिकम अ बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसी तरह हमें मालूम है Justice Tasadduq Gilani is a former knight, and I've been the opportunity to be on the executive committee of the former alumni. तो अब आप तसद्दुक गिलानी जस्टिस साहब से मजाक में पूछते हैं कि भाई आप बताइए, आपने तो 2 साल की LLB की थी, फिर 3 साल की LLB हो गई, फिर 5 साल की LLB हो गई। What is education? मैं तो अभी तक फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन क्या है, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आया। How to move ahead? Thank you very much. Very important questions. So I'll ask each of you to answer something. Ready or not? Professor, you want to start? एक सवाल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे था। तो देखें, तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एविडेंस काफ़ी क्लियर है कि इनिशियल ईयर्स में जो माँ बोली जिसे कहते हैं, मदर टंग, होम लैंग्वेज, आप उसे जो भी कहें, जो बच्चा घर पे बोल रहा है, बच्ची घर पे बोल रही है, उसकी बहुत अहमियत है पहले कुछ सालों में। अगर वो पंजाबी गड्ढा कह रही है तो उसको आप अनियन पे सीधा लाएंगे तो बहुत बड़ा ब्रेक आ जाता है, जो कि उसकी एग्जिस्टिंग एजुकेशन, नॉलेज, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को बिल्कुल अनवर्दी भी बना देता है और उसका फायदा नहीं उठाता। We have plenty of evidence कि conceptual development initial years की जो है वो बहुत tied है with the first language acquisition, और वो अगर first language क्या आप पहली जमात में और ज़बानें ना लगाएं, तो और ज़बान ज़रूर लगाइए, लेकिन माँ बोली को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए पहले कुछ साल। और वो इतना मुश्किल नहीं है अगर वो ओरल भी हो, क्योंकि पहले कुछ साल में 2-3 साल ओरल बड़े आराम से काफ़ी काम हो सकता है। हमारी सारी इनिशियल लर्निंग जो होती है एज अ चाइल्ड वो ओरल होती है। उसके बाद आप किस चीज़ को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, अगर आप उसके साथ पहली जमात से उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों पढ़ा रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। यू कैन मूव फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश और यू कैन इवेंचुअली हैव इंग्लिश एज अ मीडियम। समझ लीजिए कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन
और लैंग्वेज एक्विजिशन आर डिफरेंट थिंग्स। लैंग्वेज एज लैंग्वेज ही पढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो जो मर्जी जबान आप पढ़ाइए, वो आपको एक अलग तरीके है पढ़ाने का। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ ये है कि आपकी जबान में बच्चों को मैथ साइंस वगैरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू या अंग्रेजी करने से उर्दू या अंग्रेजी नहीं आती। वो हम बहुत दफा ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इधर से उधर भाग के, उधर से इधर भाग के, वो क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन एक खास तरीका है, लैंग्वेज एज लैंग्वेज पढ़ानी पड़ेगी। सो वो हमने आज तक पाकिस्तान में फैसले नहीं किए कि भाई मदर टंग माँ बोली का क्या रोल होगा, वो भी हमने कभी नहीं बीच में आने दी। पंजाब में तो बिल्कुल नहीं आने दी, सिंध में है और केपी में किसी हद तक पश्तो है, बाकी जगहों पे उर्दू या अंग्रेजी में ही बात होती है। दूसरा, हमने ये उर्दू और अंग्रेजी का झगड़ा हमेशा से चल रहा है, पर ये बड़ा अब शायद बायस इत्मीनान हो या इक्वली डिस्कम्फर्टिंग हो कि ना हम उर्दू अंग्रेजी अच्छी पढ़ाते हैं, ना अंग्रेजी अच्छी पढ़ाते हैं, दोनों में ही हमारे बच्चे फेल होते हैं। तो वो पढ़ाने से ताल्लुक है कि हम पढ़ा बुरी तरह रहे हैं। तो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मुझे लगता है कि इशू इतना बड़ा नहीं है, अगर आप जबानें सही तरह से एज जबान पढ़ाएं, एंड देन यू कैन मूव इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारी प्रॉब्लम हम जबान नहीं पढ़ते। पॉपुलेशन का मसला बिल्कुल, 6 मिलियन बच्चा पैदा हो रहा है हर साल, 26 मिलियन एजुकेशन से बाहर बैठ रहा है, 6 मिलियन की पाइपलाइन है। पहले 15-20 साल किसी भी बच्चे की जिंदगी के उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, उसके एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी चीजों में। तो हर साल 6 मिलियन बच्चे की तैयारी करनी है, जो आज पैदा हो रहा है, 4 साल बाद, 4.5 साल जो भी है, उसके बाद हमने उसकी अर्ली एजुकेशन, ये वो, ये नंबर ही बहुत बड़ा है। राइट, कई मुल्कों की शायद आबादी हो 6 मिलियन, हमारे हर साल 6 मिलियन बच्चा आया जा रहा है। वो उसको आप पर सेकंड देख लें कि हमारे बैठे बैठे यहाँ कितने बच्चे और आ गए हैं पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा एक इशू है। सो उस पर तो डिसएग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब उसको काबू कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, मेरे ख्याल में एजुकेशन उसके लिए भी जरूरी है कि जहाँ भी हमने देखा एजुकेशन ज्यादा हुई, ये दीप्स के सर्वे में भी है कि वो बच्चियों की मैरिज एज पीछे जाती है, एजुकेशन होने से, काम करने से मैरिज एज पीछे जाती है, मैरिज एज पीछे जाती है तो फर्टिलिटी रेट भी कम होता है। बहुत सारे कनेक्शन हैं बिटवीन एजुकेशन पॉपुलेशन। सो एक ये भी जरिया बन सकता है इसका कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट जो आप पॉलिसीज लाना चाहते हैं फॉर पॉपुलेशन अवेयरनेस, कंट्रोल, यू नो, कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी, जो आप करना चाहते हैं, उसके साथ तालीम पे भी खर्चिए, तो वो भी इसको कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स मेकिंग दैट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। लेकिन उसके बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि द sheer number is too large for us to plan for, अगर यही इसी तरह चलता रहा तो। जो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, किसी वक्त तो स्किल्स को हमें डायरेक्टली ऑन बोर्ड देना पड़ेगा, और जो स्किल्स की बहुत बुरी रेपुटेशन है पाकिस्तान में कि भाई हाथ से काम करना या स्किल्स में जाना किसी तरह तौहीन है, और जो मैट्रिक करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज तो चाहिए, वो उसके 3-4 तरीकों से हमें एड्रेस करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में भी स्किल लानी तो पड़ेगी किसी स्टेज पे, लेकिन स्कूलों में भी लानी पड़ेगी। सिर्फ मुझे डर ये है कि गरीब के लिए आ जाएगी, अमीर के लिए नहीं आएगी, और वो जो फर्क हम करते हैं तालीम में वो और ज्यादा मजीद बढ़ा देंगे इससे। तो किसी ऐसे तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकें जो स्किल्स की जो रेपुटेशन है वो भी चेंज हो, और सबको स्किल्स के लिए मौका मिल सके। I mean, I would have loved, I went to a elite school, I would have loved to have carpentry in my school. And I don't think मेरी कोई इज्जत में फर्क आता अगर मैं अच्छी मेज कुर्सी या कुछ बना सकता एंड और बाकी चीजें कर सकता। और बेसिक स्किल्स जो लाइफ स्किल्स हैं, खासकर रूरल अर्बन में जो फर्क है उनको एक्सप्लॉइट अगर हम करें, एनिमल हस्बेंड्री है या वेजिटेबल फार्मिंग है या बाकी चीजें हैं, अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं, मेरे ख्याल में तो अब वो जरूरत बनती जा रही है with climate change and a lot of other things. So we have to go back to basics, rethink education, rather than कि मक्खी पे मक्खी मारे जाएं कि 14 नुकात याद कर नहीं करते हैं, उसी में सैल्वेशन है,
दुनिया और आखिरत बेहतर होंगे अगर ज्यादा निकात आ गए वगैरह। सो वो चीजें हमें करनी पड़ेंगी, पर वो इस वक्त हो तो नहीं रही। आपने एसएनसी की सारी ड्राइव देख ली, हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की, उसके बाद क्या हुआ उसका नतीजा वो हमारे सामने है। सो वो उसी में ये हाउ मेनी इयर्स ऑफ एजुकेशन उसी से टाइड है। लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि बेसिक्स जो है न्यूमरेसी लिटरेसी के, वो हर बच्चे का हक भी है, उसको मिलने चाहिए। वो अब फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी होते जा रहे हैं। यानी अगर आपने एटीएम भी जाना है, अभी मैं पिछले दिनों ही एटीएम में अपना पैसे निकलवा के बाहर निकला तो एक साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता इससे 500 रुपए कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो जो बेसिक लेवल ऑफ लिटरेसी न्यूमरेसी है। और किसी जमाने में पाकिस्तान आया था जहाज में, तो बहुत सारे हमारे जो गल्फ से खासकर भाई चढ़ते थे, वो अपना वो लैंडिंग कार्ड भरवाया करते थे आपसे, क्योंकि वो ज्यादातर बड़े एक बेसिक लेवल लिटरेसी न्यूमरेसी का तो हर शहरी का हक भी है, मिलना चाहिए। वो 8 जमातें हैं, 10 हैं, वो आप फैसला कर सकते हैं क्वालिटी अच्छी है तो 8 कर लें, नहीं तो 10, जिस तरह भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ। उसके साथ फिर आप स्किल्स और बाकी चीजें ला सकते हैं जो बच्चों के पोटेंशियल के मुताबिक विदाउट अ स्टिग्मा आप वो फिर प्रोवाइड कर सकें। ख्वाब है लेकिन उसके बगैर तालीम सही हो नहीं सकती। तो आई थिंक अमजद साहब आपको लास्ट वर्ड देते हैं क्योंकि टाइम जो है थोड़ा सा और ऊपर चले गए, तो आई लाइक Sure. कि आप टेक योर टाइम आंसरिंग द क्वेश्चन। Sure. I think population planning पे मैं ये बात करूंगा कि अगर लास्ट 50 इयर्स में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है 2.7% और बांग्लादेश और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रही है 1.7%। तो अगर पिछले 50 साल में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी 1.7 होती जो इंडिया और बांग्लादेश की रही है, तो हमारी पॉपुलेशन आज 25 करोड़ नहीं होती, 16 करोड़ होती। 9 करोड़ लोग कम होते जिनको आपने तालीम भी देनी है, जॉब्स भी देनी है, घर भी देने हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी देनी है। तो ये जो एक पॉपुलेशन का बॉम्ब है, ये बहुत इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली हमने नेशनल सिक्योरिटी को बहुत नैरोली डिफाइन किया हुआ है पाकिस्तान में और इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो रेज हुआ वो लोकल गवर्नमेंट का था। अब यहाँ पे अगर एक एजुकेशन मिनिस्ट्री में कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसका अपना बच्चा तो बीकन हाउस या कराची ग्रामर स्कूल जा रहा होता है और 3000 स्कूल उसके नीचे होते हैं, ना उसको उन स्कूलों का नाम पता होता है, ना उसका कोई लेना देना होता है। तो आई थिंक ये जब तक लोकल गवर्नमेंट्स नहीं आएंगी, और जो आइडिया है एक दुनिया में स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, ठीक है, ये जब अमेरिका में भी आया था 1950-60s में, तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा उसको रेजिस्ट किया था कि ये आप जो पेरेंट्स हैं उनको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में डाल रहे हैं और वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है। ये तो बात सही थी कि उस जमाने में जो पेरेंट्स भी थे फर्स्ट जनरेशन पढ़े लिखे नहीं थे, मगर कम से कम उनका एक स्टेक था क्योंकि उनके उनके बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे थे। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसमें पेरेंट्स भी हों, जिसमें लोकल काउंसलर भी हो बेस्ड ऑन द लोकल गवर्नमेंट, लोकल कोई डॉक्टर भी हो, दे प्ले एन एनॉर्मस रोल के उस स्कूल की, और उसके पास उनके पास अथॉरिटी होती है हायरिंग फायरिंग एक्सपेंसेस। तो आई थिंक जब तक हम लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे और ये चीज़ें लोकलाइज नहीं करेंगे, चाहे बेसिक हेल्थ हो या बेसिक स्कूलिंग हो, तब तक हमें रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे। आई स्टॉप हियर, थैंक यू। थैंक यू साहब। आई थिंक बहुत सारी लेयर्स थी जिसको हमने एक्सप्लोर किया, बट बहुत सारी ऐसी लेयर्स थी जिसको अभी हम एक्सप्लोर ना कर सके। तो आई थिंक दिस विल बी अ सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन। So first of all, thank you for your patience, attention, coming. Time is the greatest gift we can give. And इन दो शख्सियात को बुलाने का मकसद भी ये था कि I think while they are also very realistic, critical of the system, they still embody this drive, this promise that education is a very core issue for us. And now we have explored the intersectionality between education and competition. आखिरी चीज मैं ये कहूँगा कि इन दोनों लोगों की कंटिन्यूड एफर्ट्स को एक शेर में हम शायद कह सकते हैं। अहमद नदीम कासमी ने बड़े अच्छा शेर कहा था कि शिकवे जुल्मते शब्द से तो कहीं बेहतर था, शिकवे शब्द से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते हैं। थैंक यू वेरी मच।